Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Cambridge Lower Secondary, Book 8, and today we are going to start chapter number 3, exercise 3.2, which is related to significant figures. We have already done these type of questions earlier, and today we will discuss some more questions. So watch the video till the end, do not skip, and you're going to learn about significant figures and how to round off the number. Whenever the question says round each of these numbers to this much number of significant figures, then what you have to do, you just have to look for the numbers like 352. If the question says we have to round it to one significant figure, and here we have one, two, three significant figures. So always remember we will start from the first number, okay? First significant figure. It means since it's a whole number, so we will only keep 3 and we will turn the other digits 0. But there is one more thing that we have to account for. That is, whatever number we are rounding, this is the rounding digit. The digit next to it, the very next digit is decider. This digit will decide, do I have to keep the last rounding digit as it is, or do I have to add 1 into it? If this decider will be between 0 till 4, then I'm not going to change the rounding digit. But if the decider will be between 5 till 9, then I have to add 1 into the rounding digit only. The rounding digit. Okay, so it would become 400. It means when I round off 352, it would become 400. Why? Because 352, what is the science behind that? It's actually saying that if we talk about 352, so if we have to keep it to one significant figure means the first digit and its place is hundreds. When we talk about hundreds, so we will look for this digit 300 and the digit next to it, that is 400. And then we will decide that this 352 is closer to 300 or 400. That's all. Right? So it couldn't be 4 or 40. It couldn't be because it's 352. The value of the number won't change. The value of 352 is in hundreds and the value of 4 and 40 is not in hundreds. So it couldn't be 400. So these two options are absolutely wrong. ठीक है, तो यहां पर आपको यही देखना है कि हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर वन सिग्निफिकेंट फिगर है तो जो पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो आपका राउंडिंग डिजिट होगा और उसके बराबर वाला डिजिट, उसके राइट साइड पर जो डिजिट होगा वो डिसाइडर होगा। वो डिजिट डिसाइड करेगा कि जो आपका राउंडिंग डिजिट है उसमें आपने +1 करना है या नहीं। Now let's talk about the second one. In the second one, we have not a whole number, it's a decimal. So when we will come up with any decimal, then how are we supposed to do that? Again, this 7 will be the rounding digit. Okay, let's make a round over it so it will become easier for you. And then the decider is the first decimal place. So if we have to round off 7, it must become 7.000. But let me tell you one thing over here. And yes, the decider is 2, so we are not supposed to add 1 into 7. ठीक है, decider 2 है, 7 राउंडिंग डिजिट है, एक डिजिट हमने राउंड ऑफ करना है तो बाकी सारे डिजिट 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका डिसाइडर 2 है तो आपने 7 में +1 भी नहीं करना। But still, this answer is wrong. It couldn't be 7.000. Why? Because you have to remember that all the zeros after decimal point would be significant if there is a non-zero digit before them. ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। लाइक आई एम राइटिंग 0.01050, ठीक है। It's a number over here. I have so many zeros over here. And it's a decimal number. Decimal number के अंदर जो आपके zeros होते हैं उसमें से कुछ zeros हमेशा significant होते हैं और कुछ zeros हमेशा non significant होते हैं। तो याद रखो, start में जो zeros आते हैं ये हमेशा non significant होते हैं, ठीक है। और जो जीरोस हमारे पास किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है या एंड में आता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो इस नंबर के अंदर 0.01050 में वी हैव
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 और 5 तो हैं ही सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स तो जितने भी होते हैं जहां पर भी हो, चाहे डेसिमल से पहले हो, चाहे होल नंबर में हो, चाहे डेसिमल के बाद हो, वो सबके सब हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। सारा का सारा मसला सिर्फ जीरोस में होता है। तो अगर जीरो आपका स्टार्ट में आ जाएगा तो वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होगा, और अगर डेसिमल के बाद बीच में या एंड में आएगा तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पर हमारे पास 1050 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो अब यहाँ पर 7.000 के अंदर ये जो तीनों जीरोज हैं ये 7 के बाद आ रहे हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। हाँ, अगर ये हमारे पास नंबर इस तरह होता 0.0007, तो ये तीनों चारों जीरो जो है इनसिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे इससे पहले कोई भी यहाँ पर डिजिट नहीं है, ठीक है। तो अगर स्टार्ट के जीरोस होते हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन एंड के जीरोस क्योंकि सिग्निफिकेंट होते हैं, एंड द क्वेश्चन क्लियरली सेज दैट वी हैव टू राउंड each digit to only one significant figure, so the answer would be 7, not 7.000, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 7, ठीक है। बाकी यहां पर 7.3 के अंदर तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7.29 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो खुद ब खुद रॉन्ग हो जाएंगे। देन द नेक्स्ट वन सेज 11540 विल बी राउंडेड टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। आप यहाँ पर डिजिट लिखो सारे 11540। तो वन फर्स्ट डिजिट आपका जो है वो क्या है, राउंडिंग डिजिट है, एंड दिस वन इज योर डिसाइडर, इट्स अ होल नंबर, सो योर नंबर वुड बिकम 10000, एंड वी आर नॉट सपोज टू एड 1 इनटू द फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 10,000। 11,000 लिखोगे तो योर आंसर वुड बी रॉन्ग। 11,000 लिखने में टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 11,000 और 12,000 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बोथ ऑप्शंस आर रॉन्ग। Then we have 0.0087. I told you people in 0.0087 we only have टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये तो हैं ही नॉन सिग्निफिकेंट। इसको आप इग्नोर करें तो यू आर सपोज टू राउंड 8, और 7 आपका डिसाइडर है। 7 5 से 9 के बीच में है, तो वी आर सपोज टू ऐड 1 into 8, इट वुड बिकम 9। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 0.009। दिस इज द फाइनल आंसर। Right? Now let's talk about question number 2. In question number 2, we have to round each number to two significant figures. अब two significant figures की बात हो रही है. If we talk about the whole numbers 243, so here we already have three significant figures. This one would become, now the second digit would be your राउंडिंग डिजिट, ठीक है। जब वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना होगा तो योर फर्स्ट डिजिट वुड बी राउंडिंग डिजिट। व्हेन यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन योर सेकंड डिजिट वुड बी राउंडिंग डिजिट, ठीक है। सो द थर्ड डिजिट वुड बिकम डिसाइडर, ठीक है। ये पॉइंट्स अगर अपने पास नोट डाउन करते जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहेंगे। इट्स अ होल नंबर, तो 3 को हम 0 में चेंज कर देंगे एंड इट वुड बिकम 240, और 4 में +1 भी नहीं करेंगे बिकॉज द डिसाइडर इज इन बिटवीन 0 टिल 4, ठीक है। तो यहाँ पर इट वुड बिकम 240। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट, फॉर पार्ट ए। देन फॉर पार्ट बी वी हैव 0.235। तो इसके अंदर पहला सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो दिस इज द राउंडिंग डिजिट। 5 डिसाइडर है। जब भी डिसाइडर आपका 5 से 9 के बीच में होगा, यू हैव टू ऐड 1 इनटू द राउंडिंग डिजिट एंड इट विल बिकम 0.24। लेकिन 4 के बाद आपने 0 नहीं लगाना, क्योंकि होल नंबर में हम 0 लगाते हैं ताकि नंबर की वैल्यू चेंज ना हो, और जब होल नंबर के अंदर हम 0 लगाते हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो 240 के अंदर हमारे पास सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन 0.24 के बाद अगर मैं 0 लगाऊंगी तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि द क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स दैट यू हैव टू राउंड इट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दिस आंसर इज करेक्ट, दैट इज 0.24। नेक्स्ट वी हैव 24.15. Now the second digit is 4, ठीक है। दिस वन इज राउंडिंग डिजिट एंड दिस वन बिकम डिसाइडर। डिसाइडर आपका 1 है, तो योर आंसर वुड टर्न इनटू 24। वाई? बिकॉज 24 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद आप 0 लगाएंगे तो ये 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो इट वुड बिकम 24, राइट। द नेक्स्ट वन इज 0.002। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास ये जो 0.00 के अंदर ये 3 जीरोस हैं, इनसिग्निफिकेंट है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, तो ये राउंडिंग डिजिट हो गया, और डिसाइडर इज 8। तो सिंस डिसाइडर इज इन बिटवीन 5 till 9, so you have to add 1 into it and your answer would become 0.0024. So this option would be correct. Next we have 2396. Again, it's a whole number, so the first digit is your
फर्स्ट डिजिट को कुछ नहीं करना, सेकंड डिजिट इज द राउंडिंग डिजिट एंड 9 इज द डिसाइडर। 9 डिसाइडर हमें 3 के अंदर +1 करना पड़ेगा एंड इट वुड बिकम 2400। होल नंबर है तो जीरो आपने लगाने पड़ेंगे, जितने भी आपके होल डिजिट्स हैं उन सब में आपको जीरो ऐड करना पड़ेगा। इट वुड बिकम 2400। इस एक क्वेश्चन की ही अगर आप दो दो तीन तीन दफा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव 2.3। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, दैट इज राउंडिंग डिजिट हमारे पास 3 है, सो इट वुड बिकम 2.3। लेकिन जो डिसाइडर है दैट्स 6, सो अकॉर्डिंग टू डिसाइडर वी हैव टू ऐड 1 इनटू इट एंड इट वुड बिकम 2.4। बट 4 के बाद जीरो नहीं लगाएंगे, अगेन वही बात है कि ये डेसिमल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए अगर आपने यहाँ पर 0.4 के बाद जीरो लगाया तो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो द आंसर वुड बी 2.4 एंड दैट्स ऑल। Now let's do question number 4, which says round each number to the stated number of significant figures. तो अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको कुछ नंबर्स को वन सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ को 2, कुछ को 3, कुछ को 4 तक राउंड ऑफ करना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, इट्स 135। 135 में वन सिग्निफिकेंट फिगर है तो 1 विल बी द राउंडिंग डिजिट, इट वुड बिकम 100 बिकॉज 1 के बाद जो आपके दोनों डिजिट्स हैं उसको जीरो कर देंगे और आपका जो डिसाइडर है दैट्स 3, तो 1 में आपने +1 भी नहीं करना। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट बी 4, 5, 6, 7, 8, वी हैव टू राउंड इट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब है द राउंडिंग डिजिट वुड बी द सेकंड डिजिट 5 एंड दिस इज द डिसाइडर। डिसाइडर 6 है तो 5 में +1 कर देंगे, इट वुड बिकम 46 और बाकी डिजिट्स को जीरो बना देंगे बिकॉज इट्स अ होल नंबर। होल नंबर के अंदर जीरोस को हम रखते हैं, डेसिमल्स के अंदर हम जीरोस को नहीं रखते। नेक्स्ट वी हैव 18.654। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो 1, 2, 3, थर्ड डिजिट विल बी द सिग्निफिकेंट द राउंडिंग डिजिट एंड फोर्थ डिजिट विल बी द डिसाइडर। तो सिंस 6 के बाद 5 डिसाइडर है तो वी हैव टू ऐड 1 into 6 एंड इट वुड बिकम 18.7। और इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है तो 7 के बाद आप जीरो ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ डेसिमल नंबर। नेक्स्ट वी हैव 0.0931, ठीक है, सॉरी इट्स 931। तो यहाँ पर हमारे पास वन सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो ऑलरेडी हमारे पास ये जो दो डिजिट्स हैं 0, 0, ये इनसिग्निफिकेंट है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 9, तो दिस विल बी द राउंडिंग डिजिट एंड 3 विल बी द डिसाइडर। तो यहाँ पर ही हमारा क्या हो जाएगा 0.0, तो एज इट इज लिख देंगे। जो फर्स्ट राउंडिंग डिजिट है उसके अंदर भी +1 नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू राउंड इट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड द डिसाइडर इज नॉट इन बिटवीन 5 till 9। नेक्स्ट वी हैव 0.7852, sorry 72, and we have to round it to 2 significant figures. It means the second digit will be the significant rounding digit. तो ये 7 के बाद जो 8 है ये आपका सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 0 पॉइंट के अंदर पॉइंट से पहले जो 0 है वो इनसिग्निफिकेंट फिगर है, और उसके बाद क्योंकि 7 है तो इसलिए वी हैव टू ऐड 1 इनटू इट, सो इट वुड बिकम 0.79। ठीक है, बट मेक श्योर कि यहाँ पर कभी कभी जो राउंडिंग डिजिट होता है वो 9 होता है और उसके बाद आपके पास कभी कभी जो है जो डिसाइडर होता है वो भी ऐसा 5 से 9 के बीच में आ जाता है, तो आपको 9 में फिर +1 करना पड़ेगा, राइट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है वी हैव 1.40948 एंड वी हैव टू राउंड इट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमारे पास फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कौन से। तो 1, 2, 3, 4, फोर्थ डिजिट विल बी द राउंडिंग डिजिट एंड दिस विल बिकम द डिसाइडर। अब जो आपका डिसाइडर है ये 4 है, तो 4 की वजह से आपको 9 में कुछ भी प्लस नहीं करना। अगर ये 5 होता तो हम 9 में +1 करते और वो 10 बन जाता, तो 0 यहाँ पे रखते और 1 को कैरी दे देते इस 0 को, ठीक है। बट सिंस ये 4 है 9 के बाद, तो हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी 1.409 एंड यू कैन सी दैट हियर वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, राइट। नेक्स्ट वी हैव 985। So 985 is to be rounded to one significant figure. So this is the rounding digit and this is the decider. अब जो आपका decider है it's 8. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 9 में +1 करना है, it will become 10. और उसके बाद जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं उसमें आपने 0 कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा 1000। अब आप कहेंगे मिस इसमें तो 4 डिजिट्स आ गए, डजेंट मैटर, as long as it has only one significant figure, your answer is absolutely correct। 1000 के अंदर हमने इसको राउंड ऑफ किया जब 985 को, तो ये 1000 ही बनेगा ना, क्योंकि राउंडिंग डिजिट आपका हंड्रेड्स में है 900, तो 985 विल फॉल बिटवीन 900 एंड 1000। तो 985 900 और 1000 के बीच में तो है, तो ये किससे क्लोजर है,
1000 से, तो इसलिए इट विल बी राउंडेड टू 1000, और इसके अंदर 1000 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी तीनों जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 0.697। इसके अंदर वी हैव टू राउंड इट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर 6 है और दूसरा 9 है, वी विल राउंड इट, and the decider is 7. Now, since the decider is 7, we have to add 1 into 9, so it would become 0.70, because 9 plus 1 is 10. We will carry 1 with 6, it would become 0.70. So the answer would be 0.70. 0.70 has two significant figures, because I told you people that zeros at the end of a decimal would be considered as significant. तो यहां पर अगर आप 0.7 लिख देंगे, योर आंसर वुड बी रॉन्ग। अगर आप 0.70 नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि यू हैव टू राउंड इट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहां पर ये 7 और 0 दोनों सिग्निफिकेंट है। ठीक है, next we have the last number 8.595, and we have to round it to three significant figures. Three significant figures matlab third digit would be the significant figure, which will be the rounding digit, and 5 will be the decider. ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 decider की वजह से 9 में +1 करेंगे, and it would become 10. We will carry 1 to 5, it would become 6, and it's 8.60. You can see that 8.60 has 1, 2, 3 significant figures, and it is rounded to 3 significant figures. So we have completed till question number 4. Inshallah, in the next video, we will solve the next few questions. Until then, take care. If you are new to my channel, don't forget to share it with your friends and subscribe to my channel. Take care. Allah Hafiz.